चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां आयोजित 3 दिवसीय IATO के 39वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ कार्यक्रम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी लाइव तस्वीरें देखिए। Members of the media and ladies and gentlemen, first of all, apologies for this delay which was beyond anyone's control. We will try and finish it ASAP so that dinner is not delayed much. Good evening friends, we are really honored to have with us Shri Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, for offering IATO platform of the annual convention. Sir, we are indeed grateful to you when we came to meet you in your office to invite you for the convention. And you immediately confirmed to inaugurate the convention. So thank you very much. This gave us confidence and motivated us in making this convention one of the highest attended convention of IATO. Latest estimate मेरे को ये दिखा रहा है शायद 1200 टच कर जाएंगे। सब आप भी आपके बंदे शुक्ला साहब की जो वो हुई है हमारे पर मेहरबानी सब उसका रिजल्ट है। We are extremely grateful to Honorable Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, our Honorable Union Minister for Tourism and Culture, for joining us here despite his busy schedule. He started in the morning, well I don't know what time he got up. He started in the morning at taking a 7 o'clock from Goa, a flight from Goa to Bhopal via Mumbai. Immediately on arrival in Bhopal, he left for Sanchi and now he has joined us here. He has to go back to Delhi also just now. This shows his passion for the tourism and we are hopeful under his leadership the industry will get full support and the ministry and overseas promotions will restart. In fact, this has already started and our ministry is participating in all major overseas tourism marts. We also request the Honourable Minister, which I spoke with him in his room also, to reinstate the MDS scheme for tour operators which has been discontinued for the last 4 years. This has resulted in tour operators not being able to do overseas promotion and participate in overseas travel marts. We are honoured to have the kind patronage of Shri Dharmendra Bhav Singh Lodhi ji, the Honourable Tourism Minister of Madhya Pradesh. Without his support, it would not have been possible to organize this very high magnitude convention in Bhopal. We value the kind presence of Shri Shobha Shekhar Shukla ji, the Principal Secretary Tourism and Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, Bhopal. We are also very thankful to Dr. T. Ilya Raja ji, Managing Director, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited, Mrs. Vidisha Mukherjee, Additional Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, who have supported us and helped us out day in, day out. Sir and Madam, if you are somewhere around, we are really very grateful to you, sir and ma'am. We are also grateful to the valuable support extended by the Ministry of Tourism, Government of India for our annual convention as ever. We acknowledge the support for all participating states and express our gratitude for the same. India is grateful to the Honourable Prime Minister of India for making India the spiritual hub and taking tourism to this segment to a new level. His vision has opened new vistas for states, destinations, their USPs and also focused India as a leading tourism destination. Honourable Chief Minister Sir, the theme of our convention, Resurgent India Inbound, is apt and depicts what we want to do and the opinions of India, the travel industry, as we push forward on the way of restoration with a mission of outperforming the pre-COVID figures. We have still not reached that figures. We are grateful to you, sir, for giving us an opportunity to showcase
the immense tourism potential that Madhya Pradesh has to offer to the world. Our 10 richly crafted post-convention tours will help our members who have not seen these places to include them in the itineraries and promote in domestic and international market. So your tourism policy focuses on heritage, especially the huge draw that shall enhance employment opportunities in the state besides catering to the much needed last minute connectivity. ITO prides its valued membership and policy advocacy that shall strategic tourism. On the road to revival, we are indeed grateful to the Ministry of Tourism, Government of India in their planned schemes and activities along with the state government with a focus on responsible, sustainable tourism with inclusive growth. We are all set and ready to take the ideas and the roadmap that will emerge out of this convention to further the success story of Madhya Pradesh tourism, incredible India, and take it to emerging tourism canvas nationally at the globe level. मुख्यमंत्री साहब, हम आपको श्योर करना चाहते हैं 6-8 महीने के अंदर इनबाउंड टूरिज्म का बहुत काम आएगा, हमारा आपसे प्रॉमिस है. हाँ जी, एवरीवन सपोर्ट्स मी ऑन दैट. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. Thank you very much, Mr. Mehra. May I now request the Principal Secretary Tourism, Madhya Pradesh, and MD, Madhya Pradesh Tourism Board, Shri Shiv Shekhar Shukla, to please address the convention. Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, Honorable Union Minister, Tourism and Culture, Government of India, Honorable Minister, Tourism, Culture and Dharmaswa, Government of Madhya Pradesh, dear colleague, Joint Secretary from Government of India, Minister of Tourism, Shri Shanram ji, and very affable President of IATO, Shri Rajiv Mehra ji, and very dynamic office bearers of IATO, Shri Ravi Gosayan ji, Rajnish Kayas ji, Sunil Mishra ji, Sanjay Rajdan ji, or Mahendra Pratap Singh ji. First of all, let me thank Honorable Chief Minister and Honorable Union Minister. Despite a lot of problems on their times and a lot of demands on their time, they very patiently they made it to this particular event, which we desperately wanted them to. I'm sorry, very grateful. And let me first of all extend a very, very warm welcome to all the delegates of IATO who have gathered in this cleanest, greenest and safest heart of incredible India from all over the country. I'm sure right after you entered into Bhopal, you must be finding definitely a refreshing change. आप सबको एक अलग प्रकार का यहाँ पे आनंद की अनुभूति हो रही होगी. मैं आप सबके यहाँ पर जो कन्वेंशन हो रही है, बहुत सक्सेसफुल कन्वेंशन हो, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ. हमारे जितने भी मित्र मध्य प्रदेश में फैम ट्रिप्स में जाने वाले हैं, अराउंड 10 फैम ट्रिप्स हैव बीन क्यूरेटेड. आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू एंजॉय. Those who are missing this, I am very sure they would put in their request later on to come back to Madhya Pradesh for the fam trips. I am very happy to receive you here, and I am thankful to IATO also for choosing Bhopal and Madhya Pradesh for this convention. I am very sure this convention is going to create a new benchmark for the future conventions. Once again, I welcome here everybody, and I pray that you go back with very fond memories of Madhya Pradesh. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Shukla. I'd like to now invite the Honourable Minister of State, Independent Charge for Culture and Tourism, Religious Trusts, Religion Department, Government of Madhya Pradesh, Shri Dharmendra Bhav Singh Lodi, to please address the gathering. बोलिए भारत माता की. आज के
इस कार्यक्रम में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के इस वार्षिक अधिवेशन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस आयोजन की शोभा को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे मार्गदर्शक केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री परम सम्मानीय श्री गजेंद्र शेखावत जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के देश भर से पधारे प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, आदरणीय राजीव मेहरा जी, मीडिया के सभी बंधुगण, भाइयों बहनों, भारतवर्ष के हृदय स्थल और झीलों की नगरी भोपाल में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स बहुत ही प्रेस्टीजियस संस्था है और मुझे बताया गया है कि इस संस्था के 1200 डेलीगेट्स मध्य प्रदेश में आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये जो 1200 डेलीगेट्स आप लोग यहाँ पधारे हैं, मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश के स्पोक पर्सन के रूप में आप जरूर मध्य प्रदेश के टूरिज्म को विश्व स्तर पर ले जाने का काम करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग मध्य प्रदेश के टूरिज्म को विश्व स्तर पर ले जाने का स्पोक पर्सन के रूप में काम करेंगे तो मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ेगा और फॉरेन टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आएंगे। ऐसा इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग मध्य प्रदेश में आए हैं, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, हेरिटेज टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, सेफ टूरिज्म है। सभी अलग अलग विधाओं पर टूरिज्म की जितनी विधाएं हैं सभी पर मध्य प्रदेश काम कर रहा है। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश ने सदैव अतिथि देवो भव की परंपरा को संजो कर रखा है। तो आप सब मध्य प्रदेश में हमारे अतिथि हैं, आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी बोलना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना विषय रखेंगे और कार्यक्रम भी थोड़ी डिले हो गया है, इसलिए आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मध्य प्रदेश के स्पोक पर्सन बन के आप लोग जाएंगे। और मध्य प्रदेश में आप आए हैं तो एक आग्रह और है कि आप सब लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर घूम कर आएं। प्राकृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से, हर दृष्टि से मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.
I'd like to now request the Honourable Union Minister for Culture and Tourism, Shri Gajendra Shekhawat, and the Honourable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, to please release the IATO Manual 2024-25. अरे बेड़िया भाई 39वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए सीधी कम तस्वीर। शब्दों में समग्र रूप से कैसे समेट सकते हैं, मैं संस्कृति मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से की है। आज के इस अवसर पर हमारे अपने पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरा जी, रवि गोसाई जी, हमारे सीएस शुक्ला जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथि और देश भर से आप सब पधारे इसी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण। सर्वप्रथम मैं हमारी कश्मीर से आई बहन आपको बधाई दूंगा, जिनको एसोसिएशन के द्वारा बधाई दी गई या उनका सम्मान किया गया। मुझे मेहरा जी बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर फिल्म की इंडस्ट्री को खड़ा करने वाले या रुचि बनाने वाले या कोई परिवार का अगर नाम स्मरण किया जाएगा तो वो राजदान परिवार है, जिनने वर्षों पहले कश्मीर को एक नए रूप में भारत के उस स्वर्ग को दुनिया के सामने लाने के लिए रुपहले पर्दे का इंतजार लोग हम सब जानते हैं, कितने गाने बने, कितने प्रकार की शूटिंग हुई, क्या क्या हमारे अपने देश के अंदर इतना खूबसूरत कोई राज्य है उसको लाने में आपका योगदान था। और इस नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने उस सुंदर काल में जब आपने कश्मीर पे लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिसके कारण से पर्यटन रुका था, वो बड़ी बाधा हटाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज नया दरवाजा खोला। भारत अपनी प्रगति में आने वाले पत्थरों को उठाने के लिए न केवल समर्थ है बल्कि दुनिया को सबूत देता है कि वो अपने घर के अंदर के कष्टों को भी मिटाने में सक्षम है और दुनिया में भी आने वाली परेशानी के लिए अपना हल आगे निकाल करके हाथ बढ़ाने के लिए। हम सब देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र का सेनानी जाता है जो रूस में भी डंके की चोट जाकर के शांति की बात करता है और यूक्रेन में भी उससे आगे बढ़कर के बात करता है। ये बदलते दौर में भारत की भूमिका का एहसास कराने का समय है। इस बात को हम आप सब इस मुद्दे से भी समझ सकते हैं। 10 घंटे ट्रेन में कोई सफर करे, पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा, यहाँ इस एसोसिएशन में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। आप सबके सबसे बड़े प्रमोटर तो मोदी जी बन गए। हमारे दृष्टि से जोरदार अभिनंदन करो कि हमारे प्रकार से जिस व्यक्ति का एक मिनट कितना कीमती है, लेकिन हमारी यात्राओं का क्या महत्व है, उस यात्राओं के महत्व को बताने के लिए उन्होंने उस मार्ग को चुना। और हम सब जानते हैं एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। आपने कहा कि ये मैं गजेंद्र जी को बता रहा हूं, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि 4 साल से भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर भारत को बनाया, लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी थी। चुनौती कोविड के समय की थी, लेकिन इस कोविड के समय के बावजूद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, ये अगर चमत्कार हुआ है तो आज की हम इस बात के लिए बिना संकोच कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती है। ये हमारा सौभाग्य और भारत का सौभाग्य। और वो तो स्वयं अपने लिए जब टूरिज्म के लिए वो चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ बच्चन को लेकर के और कितने प्रकार से उन्हें प्रमोट किया है। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, आप यहाँ आए, हमारे धर्मेंद्र जी ने मध्य प्रदेश की बात कही है और मध्य प्रदेश में आपने मौका दिया तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता।
क्योंकि मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल की नगरी से मैं अगर कल्पना करता हूं कि आपकी भूमिका अगर क्या है, तो महादेव के आगे नंदी बैठते हैं। नंदी के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती, तो ये हमारे सब नंदी के रूप में आपको ही प्रणाम करते हैं। मूल भूमिका आपकी हम सब समझ सकते हैं और आपको अपने काल के कृपाल में महाकाल की नगरी में भी दर्शन करने जाना है। और महाकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तो समय के देवता है, महाकाल काल के देवता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच सबका समय नियत है। ऐसे नियत समय के नियंता के यहाँ पर समय भी उनकी भ्रकुटी में बंधा हुआ है, ना उससे बाहर है ना उसपे उनको छोड़ के जा सकता है। जो सृजन के देवता भी है, संहार के देवता भी, जो हमारे लिए जीवन में प्रतिपल उत्साह, उमंग और उल्लास जगाने वाले भी। ऐसे में आपके माध्यम से इस दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरती का दर्शन कराने के लिए ये हमारे पूरा ऑपरेटर्स तो वही भूमिका में है जिसके लिए नारायण नारायण कहते नारद मुनि हजारों वर्षों से भगवान की तपस्या करते हैं और एहसास कराते हैं, आओ जियो और जीने दो, इस प्रकृति का आनंद लो। हमारी अपनी आजीविका तो चलेगी, लेकिन प्रकृति के अंदर ये समूची मानवता को स्थापित करने के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाकर, राज्य की सीमाओं के बाहर जाकर आपस में आप उस गुमसुम पड़े पहाड़ से भी बात करते नजर आते हो जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता है। या आप भीमबेटका की गुफाओं में जाकर के हमारे यूनेस्को के माध्यम से जिनको गौरवान्वित किया गया, ऐसे कई हेरिटेज के स्थान पे ले जाकर ये आप ही की विशेषता है कि भारत के अंदर की अच्छाइयों को बांटने के लिए कोई सरकार अपने लेवल पे ये आयोजन नहीं कर सकती है। जो आपके माध्यम से होता, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जब आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ी यहाँ की बात भी करें। पूरे देश की एकमात्र राजधानी है, आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। पूरे देश में अलग अलग राज्य है, लेकिन भोपाल एक ऐसी राजधानी है जहां सड़कों का उपयोग दिन में मनुष्य करते और रात में बाघ घूमते देते हैं। टाइगर आपको मिल जाए तो आश्चर्य मत करना, ये भोपाल में ही घूम रहे, डरना मत। लेकिन वो भी जिएंगे, आपको भी जीने देंगे। ये हमारे लिए हो सकता है, आश्चर्य नहीं है। अच्छा, हमारे बीच में से आप कई प्रमाण देखिएगा इस बात। ये हमारा एक उत्कृष्ट महाविद्यालय है। मैं पहले शिक्षा मंत्री था 2 साल पहले। मैं गया दौरा करने, तो दौरा करने में वहां के प्राचार्य बच्चों ने कहा कि भाई साहब आप एक काम, मंत्री जी एक काम आप तुरंत कराइए। हमने कहा क्या करना है? बोले थोड़ी दीवार बड़ी करवा दीजिए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले दीवार इसलिए बड़ी कराइए कि कल ही टाइगर आ गया था, बार बार कूद जाता है, तो थोड़े बच्चे डर रहे हैं, जरा इनकी चिंता कर लेते। लेकिन ये आप बताइए, किसी भी सह अस्तित्व के लिए अगर कोई हमारे इस तरह की अध्ययन करने वाले भी लोग मिलेंगे कि सहअस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण कहीं देखोगे, तो आमतौर पे हम अपने रिजर्व टाइगर में तो टाइगर देखते ही देखते हैं, लेकिन अब ये अपने ढंग से बाघ ने भी हमारी आबादी के साथ जीना सीख लिया है। ये हमारा एक तरह से जीता जागता पर्यटन का केंद्र बन गया भोपाल, और आप संयोग से यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस रहस्य उद्घाटन के साथ कि आप जहां हो वहां की विशेषताओं की जानकारी लीजिए। आमतौर पर बांध जितने देखे होंगे, भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके सारे बांध, जिस बांध की शैली में आज भी 1000 साल पहले राजा भोज ने बांध की शैली क्या होना चाहिए, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये बड़ा तालाब आप देखना। इस तालाब के बनाने की विशेषता क्या है? इस तालाब के बनाने की विशेषता है, बड़े बांध तो जब भी बनते हैं आज के दिशा में, वो आज तो सुख देते हैं, लेकिन आने वाले समय में 100 साल 50 साल के बाद मोरवी का बांध टूटा, बाकी बांध टूटते क्योंकि मुख्य धारा को रोकते हैं, और मुख्य धारा में जब पानी का दबाव बनता तो आज नहीं तो कल वो टूटने की संभावना होती है। जब बांध टूटता है तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में क्या होता बताने की जरूरत नहीं, कितनी जनहानि होती, नुकसान होता है। लेकिन ये उत्कृष्ट शैली का बांध जिसको चट्टानों की तरफ से पानी रोका गया, नेचुरल चट्टान से पूरा बांध रोका गया,
और उसका निस्तारीकरण बिल्कुल नाम मात्र के लिए, जहां आपका होटल है इसके आगे से कोलार का थोड़ा सा हमारा दरवाजा बना, ये एक तरह से आज भी तमाम इंजीनियरों के लिए चुनौती वाली रचना है कि हमारे कम खर्च में बड़े से बड़े बांध में कितना पानी इकट्ठा होता और भविष्य इसमें टूटने की संभावना ही नहीं। ये स्थापत्य की बांध की कला ये आपकी अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। आपने सांची का स्तूप देखा होगा, 2200 साल पहले बनाया हो, और वो नहीं, ऐसे कई सारी चीजें जिसपे मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। अगर आप उज्जैन जाओगे तो उज्जैन में बगैर घड़ी के अपने आप दीवार पे अपना समय क्या है आप घड़ी से मिला लीजिएगा, वहां आपको हमारे भित्ति यंत्र के माध्यम से धागों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की रश्मियां समय का निर्धारण बता देगी कि इस घड़ी इस समय क्या बज रहा है। और शुद्ध समय अगर अपन देखना चाहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम रात की 12 बजे नहीं बदलना चाहिए। वास्तव में हमारा समय तो सूर्योदय के समय से होता है, जिसको वैदिक टाइम बोलते हैं। उसकी वैदिक टाइम की आधुनिक समय की एक घड़ी भी आपको उज्जैन में दिखाई देगी। और इसी प्रकार से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन अर्थात 6 महीने बाद आसमान में सूर्य कक्षा कैसे बदलता है अपनी आंखों से दिखाई देगा। शंकु यंत्र के माध्यम से कीला गड़ा, जिसमें सूर्य के समय 22 जून और 21 दिसंबर में कभी आप टूर ऑपरेटर को यहाँ अपने आप में से भी आए या किसी को भेजिए तो दिन के 12 बजे वो देख सकते हैं कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातों पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपने आज ये आयोजन करके और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश को धन्य किया है और एक 49वें यात्रा की तरफ कदम बढ़ाए, तो मेरी अपनी ओर से बधाई है, शुभकामना है। और जहां आपको लगे कि मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मैं पूछ रहा था कि टूर ऑपरेटर्स में से अभी बड़े संस्थान होटल के मालिक कितने हैं, तो मुझे बताया गया कि 20 होंगे। फिर मैंने मेहरा जी को और जोर लगाया तो 30 होंगे। तो हमने कहा मेंबर कितने हैं, बोले 1200 से 2000 के आसपास में है। मैंने कहा मैं भगवान से कामना करता हूँ अगली बार ये सब अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने, ताज जैसे सारे अपने होटल बनाए, इस व्यवसाय में लगे। आपके लिए सबकी बड़ी मंगल कामना, क्योंकि हमारी अपनी टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी चल रही है। कभी शिवशेखर शुक्ला जी से हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ चर्चा करके इस दिशा में एमपी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हम उसमें बहुत बड़ा एक तरह से सरकार के माध्यम से इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।